Now is it visible everyone? सर एफ्यूशन का मतलब क्या होता है? सब बता रहा हूँ, right? I'll just tell you everything, right? Now, what do you mean by diffusion? Diffusion means that suppose I have a container. मेरे पास एक container है, ठीक है? इस container के अंदर what we have done? इस container के अंदर what we are doing? We are passing some gases inside this container. Gases. Right? Let's say मैंने इस कंटेनर के अंदर ऑक्सीजन गैस डाला एंड इसी सेम कंटेनर के अंदर नाइट्रोजन गैस डाला. So what will happen when the gases goes inside this container from this small hole? They try to mix with each other, right? तो धीरे धीरे क्या होगा? धीरे धीरे क्या होगा? Nitrogen gas will move inside the whole container. Similarly, oxygen gas will move inside the container. तो बाद में मेरे पास एक homogeneous solution बनेगा. So I'll be getting a homogeneous solution. One second. Sir, somebody's sound is coming. सर सर हेलो सर. क्लास खत्म हो गई क्या? अरे अरे हेलो, नहीं, आवाज नहीं, आ रही है? आवाज आ रही है? सर का हाँ, फोन हाँ. आया था. सर को फोन आया था. हाँ, मेरे को फोन आया था. Homogeneous solution I'll getting a point. So I'll get a mixing of N2 and O2 gas. They're clubbed, they're combining together to form a homogeneous solution. नहीं, homogeneous का मतलब क्या होता है? ये solution One layer, having one single uniform, layer. क्या? Solution having a uniform, single layer. अरे तुमको क्या समझाया था मैंने homogeneous के अंदर? यूनिफॉर्म composition. uniform composition. मैंने कभी यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन बोला क्या homogeneous के लिए? The boundary is not visible. Yeah, exactly. Boundary is not visible. It's not Yeah, visible. homogeneous का मतलब होता है we cannot see the Boundary is boundary. not. We cannot See the boundaries. see the boundary between solute and Solution. solvent. Or solvent. Solvent either by Naked eye. or by Light microscope. Microscope. or by light microscope. Agreed? Now, Yes, sir. what do you mean by diffusion? Diffusion means the intermixing of gases. Intermixing of gases which results in the formation of, A homogeneous mixture. very good, formation of homogeneous mixture. Understood? Wait, समझ में आई बात? Yes, sir. Great. सर Yes. यस सर. Very good. सर डिफ्यूजन की डेफिनेशन बताए ना कि लॉ बताया. ये डिफ्यूजन का डेफिनेशन बताया. तो shall I rub this now? एक मिनट सर. नो सर. लिख लो लिख लो. सर एफ्यूशन इसका ऑपोजिट रहेगा ना? हाँ,
सर एफ्यूजन में तो गैसेस एक होल से बाहर निकलती हैं। I didn't get it. दोबारा बोलो. एफ्यूजन में आपने बताया था कि वो एक सिंगल होल से बाहर निकल रहा है। Exactly. अच्छा, the student who said that write bigger, now he can see all this stuff, right? अब दिख रहा है? हाँ सर. ठीक है. यस सर दिख रहा है. Great. Okay. Shall I rub this now? Yes sir. Done, sir. Yes, sir. Very हो good. गया सर. Now very good, very good. अच्छी बात है, हो गया. Okay. Now, effusion, right? Yes sir. Very good. Now listen, I have a small hole again. Acha, small hole ko na, you can say orifice also. This is nothing but orifice. I just write down the spelling. Orifice. Okay. Now, what do you mean by effusion? Now, understand one thing. I have nitrogen gas or oxygen gas inside this container. Let's say I have oxygen gas inside this container. And similarly, I do have nitrogen gas inside this container. Now understand that what do you mean by effusion? Whenever the gases are moving out from a small hole, right? I'm getting oxygen also which is coming out. I'm getting nitrogen gas also which is coming out, right? Now listen. This whole process is known as effusion. Now, shall I say that it is same as escaping of a gas from a small orifice? Yes sir. Oh, intermixing था इसमें escaping है, right? So, what is the definition of effusion? The escape of gas. the escape of a mixture of gases. Maybe gas or mixture of gases, right? The escape of a gas / mixture of gas mixture from a small orifice that is escape of gas from high pressure to Lower pressure. very good, to lower pressure. Just write this down so that we'll move ahead. It's nothing but a diffusion and effusion definition we have done. Sir, the escape of gas के बाद क्या है? Escape of gas from an orifice. हाँ. सर एफ्यूजन में सेपरेशन बढ़ेगा ना नाइट्रोजन? हाँ, effusion में separation बढ़ेगा. Now that's what we are doing right now. What do you mean by Graham's law of diffusion and effusion? हम उसको ढंग से करेंगे अभी. सर एक डाउट था. हाँ बेटा बोलो. सर अगर कंटेनर के आगे समझ लो प्रेशर सेम है और कंटेनर के अंदर नाइट्रोजन ऑक्सीजन है और बाहर में बस ऑक्सीजन है तो सेपरेशन बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा ना, बिकॉज देखो होगा क्या, जो नाइट्रोजन अंदर है वो बाहर आएगा बिकॉज बाहर नाइट्रोजन नहीं है. हाँ. और ऑक्सीजन सर बट प्रेशर तो सेम है ना? अरे नहीं, समझो तुम क्या कर रहे हो, कंटेनर के अंदर टोटल प्रेशर सेम है, करेक्ट? यस सर. और बाहर ऑक्सीजन का प्रेशर कंटेनर के प्रेशर के इक्वल है, करेक्ट? यस सर. तो नाइट्रोजन का प्रेशर अंदर ज्यादा है कि बाहर ज्यादा है?
अंदर। तो नाइट्रोजन क्या करेगा? एस्केप, हाँ, और ऑक्सीजन का प्रेशर बाहर ज्यादा है कि अंदर ज्यादा है? बाहर। बाहर ज्यादा, ऑक्सीजन क्या करेगा? अंदर आएगा। दैट्स व्हाट। डिफ्यूज करेगा। हाँ, तो वो दोनों चीजें साथ होगी। नाइट्रोजन इफ्यूज करेगा और ऑक्सीजन डिफ्यूज करेगा। अरे आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन। मतलब सर नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगा और निकलता नाइट्रोजन ने रहेगा और और नाइट्रोजन ने जो जगह खाली छोड़ी है वो ऑक्सीजन भर देगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक है। एक हाथ दे एक हाथ ले। हाँ कह सकते हो, बट वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से हो रहा है, राइट? हाँ शैल आई रब दिस? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट। Okay. Now Graham's law of diffusion and infusion. Now understand that suppose करते हैं अपने पास एक कंटेनर है, ठीक है? उस कंटेनर में I had a orifice, ठीक है? और इस कंटेनर से गैस बाहर निकल रही है. The escaping of gas is there from this container. एफ्यूजन हो रहा है, क्या हो रहा है? एफ्यूजन हो रहा है। हाँ, इफ्यूजन हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है, दोनों में फर्क नहीं पड़ता है, बट मैं डिफ्यूजन ले रहा हूँ, सॉरी इफ्यूजन ले रहा हूँ, ठीक है? नाउ अंडरस्टैंड दैट कुछ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बाहर आएंगे, यस सर। हाँ सर। राइट? तो शैल आई से दैट रेट ऑफ इफ्यूजन, गिव मी अ मिनट, रेट ऑफ एफ्यूजन, wait, rate of diffusion slash effusion is equal to जितने नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं पर यूनिट टाइम में उसको मैं रेट बोलूंगा. फॉर एग्जाम्पल टाइम t इज इक्वल टू 0 पे कोई भी मोल नहीं आया था, नंबर ऑफ मोल्स वर 0. अब टाइम 10 सेकेंड हो गया, 10 सेकेंड के अंदर 2 मोल बाहर आए, तो मैं रेट क्या बोलूंगा? 2 मोल्स पर सेकंड, सॉरी 2 मोल पर सेकंड। 2 मोल्स 10 10 सेकेंड सेकंड के बाय अंदर आए, तो रेट 1 मोल हो गया. 0.2 0.2 मोल्स पर सेकंड। हाँ वेरी गुड, तो ये रेट हो गया. हाँ सर। Very good. So shall I say that rate of diffusion is defined as dN by dt, change in number of moles, the way number of moles are increasing. सर ये तो स्मॉल चेंज मतलब एकदम स्लाइट चेंज होता है ना? हाँ exactly, डिफरेंशिएशन है। exactly, मतलब change है ना ये, right? यस सर। तो dN by dt, Yes, sir. एक बार बताओ, pressure into volume is equal to nRT, correct? अगर यस सपोज करो वॉल्यूम कांस्टेंट है, Yes, sir. टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स, यस सर। Shall I say that it should be equal to dP by dt also? यस सर। वेरी गुड. दूसरी चीज, अगर सपोज करो PV is equal to nRT है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स. और इक्वल क्यों होगा, प्रोपोर्शनल होगा ना? हाँ बट चेंज तो इक्वल होगा ना बेटा. चेंज इक्वल रहेगा। अच्छा, चेंज इक्वल नहीं होगा, चेंज प्रोपोर्शनल होगा. Are you getting what I'm trying to say? हाँ dN सर। by dt is equal to dP by dt is equal to dV by dt. dV by dt। Now understand that Graham's ने क्या कहा था कि rate of diffusion or effusion is directly proportional to under root of your molecular mass of the gas. Am not clear? मॉलिक्यूलर मास। और मॉलिक्यूलर सोचो ना, मैं ये एनसीईआरटी के हिसाब से करवा रहा हूँ पहले. दिस इज अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी. उसके बाद हम जेई एडवांस के हिसाब से करेंगे, ठीक है? और नीट के हिसाब, जेई मेंस और नीट के हिसाब से करेंगे. अब ये एनसीईआरटी के हिसाब से, ठीक है? तो ग्राहम ने कहा था कि अगर जितना बड़ा मॉलिक्यूल और जितना भारी मॉलिक्यूल होगा उतना ही उसको टाइम लगेगा निकलने के लिए, करेक्ट? यस सर। यस सर। So he observed that rate of diffusion is inversely proportional to under root of molecular mass. एक और चीज, अगर molecular mass directly proportional to density होता है
तो अंडर रूट ऑफ डेंसिटी भी लिख सकते हैं, करेक्ट? यस सर। वेरी गुड, इट इज डेंसिटी। एंड उसने क्या, अच्छा एक बात बताओ, अगर अंदर कंटेनर के बनाने क्या है? गाइस 1 सेकेंड, सर किसका माइक चालू है? हाँ 1 सेकेंड, आज बंद कर देता हूँ, ठीक है? अब मेरी बात सुनो, अगर अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा है, अगर अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा है तो रेट ऑफ एस्केप क्या होगा? ज्यादा। ज्यादा ज्यादा होगा, होगा। और अंदर प्रेशर कम है तो रेट ऑफ एस्केप कम होगा। कम होगा। Shall I say that rate of escape is directly proportional to partial pressure of the gas, correct? जितना Correct. ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ एस्केप होगा, करेक्ट? Yes, sir. वेरी गुड। तो फाइनली जो अब हमें लॉ मिला, देखो मॉलिक्यूलर मास और डेंसिटी सेम ही रहता है, बिकॉज वी सर dn by dt, सर dp by dt और dv by dt सेम कैसे हुआ? बेटा ये प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली साइन है, प्रोपोर्शनल। तो लिख सकता हूँ ऐसा, अगर हमें प्रोपोर्शनलिटी साइन है तो, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू उस केस में अलग होगी। सर पर इक्वल कैसे हुआ डीपी? सर पर dn by dt, dp by dt वो कैसे इक्वल हुआ? मैंने इसको इसके इक्वेट किया, इसको इसके इक्वेट किया, इसको इसके इक्वेट किया, और ये प्रोपोर्शनल है। एग्रीड? हाँ सर। अभी ठीक है? यस वेरी गुड, अभी डन? यस सर। अब मेरी बात सुनो, ढंग से सुनो। तो ग्राहम ने क्या बोला? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, द रेट ऑफ डिफ्यूजन is directly proportional to partial pressure of the gas divided by under root of molecular mass of the gas. Understood? That was according to our NCERT thing. समझ में आई बात? यस सर। वेरी गुड, इसको अभी लिखो, देन वील मूव अहेड। यस सर। जल्दी लिखो। सर पी पार्शियल सर प्रेशर। वो रेट क्या है इधर? रेट क्या क्या है? बेटा? क्या क्या क्या? सर पी पार्शियल प्रेशर है ना? रेट क्या है? ना दिस इज रेट आर, आर मतलब ये रेट ऑफ डिफ्यूजन एफ्यूजन। हो गया सर। वो dn by dt है ना? हाँ वो dn by dt है, by dt है, dv by dt है, ठीक है? सर वो P R क्या है? R R is प्रोपोर्शनल। rate पर of वो diffusion and effusion। प्रोपोर्शनल है ना? हाँ वो proportional है बेटा, these are all proportional। Done, sir. very good, हो गया सर। very good। आगे चलें। what हाँ is सर। pressure of gas आदित्य? यस सर। जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा एस्केप होगा, ठीक है? R is rate मनोज, rate of diffusion and effusion, तो उसको स्मॉल r लिखा है। नूतन any doubt? Okay, great, चलो चलो, now what we'll do, we will go by competitive examination perspective। वॉइस क्रैक हो रहा है अभी ठीक है? सर। Yes. Competitive examination perspective। Okay, now according to Graham law of diffusion, he said that the rate of diffusion and effusion is equal to partial pressure into A divided by under root of 2 pi RT m naught। Now understand that ये क्या क्या है? P is Sir, हाँ, अच्छा P सर, क्या है? ऊपर ए का मतलब क्या है? बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ, यहीं पे लिख रहा हूँ ना। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है वो P है। A इज एरिया ऑफ ऑरिफिस,
2 pi r, तो r क्या है? गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। T टेम्परेचर है T टेम्परेचर है, और टेम्परेचर M molecular weight है। m naught is molecular mass। गेटिंग अ पॉइंट? अब एक बात समझो, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया था, दैट इज लाइक जेई मेंस और नीट के अंदर, इट कम्स आउट टू बी दैट वे। rate of diffusion is directly proportional to temperature raised to power n। तो पूछा n की वैल्यू क्या है, तो n should be equal to n क्या है? -12 n, एक मिनट, 0 हाफ, c हो जाएगा -12 और d हो जाएगा 1 -12 माइनस। हाफ अच्छा, सारे लोग ये कह रहे हैं -12, कौन कौन है? ओके, अच्छा, मोहित इज सेइंग -12, देवांश इज सेइंग -12, दैट्स इट, बाकी लोग कह ही नहीं रहे। मानसी is saying -12, okay, Niranjan is saying -12, me too, okay, Aditya, Om, Shaki, okay, सर क्वेश्चन का था, मेरा वीडियो लैग कर गया था। Chatu is going, हिमानिश, मैं कह रहा हूँ कि ये पूछा है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर रेज्ड टू पावर n, तो n की वैल्यू क्या है? 0, हाफ, -12, 1। So fine. So almost all of you are saying -12, right? Navya, what is the value of n? Shrikant, Navya, Saurish, वैल्यू क्या है n का? Shrikant, n का वैल्यू? Sorry, saying -12. Okay. Navya, am I audible to you? 0. Okay. Okay. Deep, what is the value? Deep. Shrikant, shut up and just give me the answer. In PTM, I'll be playing very safe then with you. Deep is saying C. Okay. Devansh, Mrudita, Sanjana is saying fine. सर मेरा 1 आ गया। यस सर, One आ 1 रहा भी है। आ रहा है। सर मेरा भी 1 आया सर, 1 आया मेरा। One आया। श्रावणी, लेट्स गो फॉर डी। श्रीकांत क्या कर रहा है? बदतमीजी नहीं। I just want the correct answer here. Shamika, we'll check it out because I want to know the presence of mind of people over here. एक बात बताओ, जिसने -12 दिया, तो उसका कहने का मतलब है जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर है। करेक्ट? करेक्ट? हाँ सर। अच्छा, एक बात बताओ, अगर कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस क्या होगा अंदर? इंक्रीज बढ़ जाएगा। अगर अंदर एनर्जी बढ़ेगा तो एस्केप बढ़ेगा, ये कम होगा? बढ़ेगा। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे होना चाहिए? तो गलत थॉट प्रोसेस हो गया ना? इनकरेक्ट हो गया। हाँ, तो इनकरेक्ट हो गया। अब एक बात सुनो, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? nRT by Am I right? yes. So T से T गया, √T बचा, करेक्ट? तो बाकी रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर, हुआ कि नहीं हुआ? ओके। तो आंसर क्या आया? B आया। That's the question asked by JEE Mains and NEET.
and that is the way they ask. अरे थोड़ा presence of mind रखना चाहिए. Everyone understood that? Yes, sir. Yes. सर तो फॉर्मूला डायरेक्टली टर्म्स में क्यों नहीं निकाला कौन सा बेटा? वैसे मतलब प्रेशर NRT वगैरह सब पे कर डिपेंड करता है ना बेटा. प्रेशर भी तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना. तो टेम्परेचर बढ़ाने पे प्रेशर भी तो बढ़ेगा ही ना. तो किस तरीके से टेम्परेचर वेरिएशन अफेक्ट करेगा. तो सारी चीजों को टेम्परेचर के टर्म्स में लिखोगे कि नहीं लिखोगे? हाँ है ना. तो ये सीन है. आगे चलें. Yes, sir. Yes. Shall we solve some problem based on Graham's law? Yes, sir. Yes. Yes. Very good, very good. So proud of you. चलो Graham's law पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ठीक है. Give me a minute. Okay. Okay. Question है. I'll just write down the question and you just answer it. ठीक है. A sample of neon gas escaped through a tiny hole. Question है कि a sample of neon gas escaped from a tiny hole. Right? In 122 seconds. Under same conditions, same moles of hydrogen gas will escape from the same orifice in how much time? सर आपने H2 लिखा है या HE लिखा है? H2 लिखा. हाइड्रोजन गैस है बेटा, वो H2 है. That pen size is bigger, no, so you cannot do anything over there. Just give me a minute. H2 gas. ठीक है. नहीं बेटा, हाइड्रोजन है. दोबारा देखो. सब बाकी सब कांस्टेंट है ना. हाँ बेटा. Listen, I'm solving it. ठीक है. नहीं. चलो, we will solve it now. Tell me one thing. सर आंसर 12.2 है.
नहीं, सुनो, अब सुन लो मेरी बात, ठीक है? सॉल्यूशन, I'll give you one more question based on that, ठीक है? Don't worry. Solution. Shall I say that let's say n is the number of moles of gas of neon. Sir, your voice is cracking. Is it? Yes, sir. Okay. N is number of moles of किसका? Neon gas, which will be equal to number of moles of hydrogen gas. Correct? Yes, sir. वेरी गुड. अब ध्यान से सुनना, रेट क्या होता है? dn by dt. करेक्ट? Yes, sir. लेट्स से नंबर ऑफ मोल्स दोनों के सेम है, तो shall I say that rate is inversely proportional to under root of molecular mass because pressure and everything will be same. और if is भी same है, pressure भी same है, molecular mass different है. Correct? Yes, sir. Which will be Yes. equal to dn by dt. अब एक काम करो, dn by dt of neon लिख लो n by 122. कोई दिक्कत? No, sir. Very good. It is inversely proportional to under root of 20. That is statement 1. कोई दिक्कत? No. Very good. N by dt for hydrogen gas is inversely proportional to 1 by root 2. Agreed? Yes, sir. Very good. I want to calculate time. तो क्या करूं? Sir, 1/√2 कैसे आया? बेटा मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? अच्छा, हाँ हाँ, और 1, हाँ, ओके ओके अब ओके दोनों को ओके डिवाइड ओके पहले ओके वाले इक्वेशन से नंबर ऑफ मोल्स दोनों को निकालेंगे. डिवाइड कर दो. 1 डिवाइडेड बाय 2 क्या आएगा? dt by 122 is equal to 1 by root 2 by root 20. करेक्ट है कि नहीं? करेक्ट है. तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 by root 10. करेक्ट है कि नहीं? सही है सर. तो करेक्ट. टाइम पीरियड कितना निकला तुम्हारे पास? 122 डिवाइड बाय टाइम कितना है? 122 डिवाइड बाय रूट 10. Yes, इसका sir. आंसर आता है अप्रोक्सीमेटली 1 सेकेंड 38 something. हाँ 38.6. कितना आंसर आया इसका? 38.6. डन. सर मैंने मतलब अलग किया, वो फॉर्मूला है ना, उसमें हाँ. सिर्फ आर के जगह नंबर ऑफ मोल्स बाय टाइम इतना बात तो लिखा. वही हुआ ना, बात तो वही हुआ ना. फिर मतलब आ गया कि मतलब रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट बाय 122 इज इक्वल टू रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट बाय टाइम. बाय टाइम क्यों किया? रेट होता है ना dn by मतलब dt, तो उसको टाइम से क्यों मल्टीप्लाई किया? नियॉन का रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, मुझे आंसर वही आया. मतलब नियॉन का रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट बाय 122 इज इक्वल टू तो हाइड्रोजन का आंसर रूट तो ऑफ आया, बट मॉलिक्यूलर वेट बाय अप्रोच टाइम. क्यों नहीं चाहिए बेटा? अप्रोच शुड बी दिस. वो आ गया, ठीक है, अप्रोच ही रखो. सर हमने हाइड्रोजन के केस में dn/dt क्यों नहीं लिया? लिया है ना, dn by dt हाइड्रोजन n by कैसे? dt पुट किया. ये तो जनरल फॉर्मूला लिख दिया ना मैंने एक बार. अच्छा अच्छा, ओहो, ओके तो ओके n ओके. by Hello, dt sir. है ना. हाँ, मोल्स कांस्टेंट है इसलिए. हाँ ओके. एग्जैक्टली. सर हाँ सर मैंने हाइड्रोजन के केस में 1/√2 को ये रूट 10 से डिवाइड कर दिया दोनों साइड को. नहीं गलत. ओके, तो फायदा क्या हुआ? सर फिर डायरेक्टली इक्वेट कर दिया ना. अच्छा छोड़ना, ये समझ में आया. यस सर. हाँ यस सर, समझ में आया. सर मैं आपको व्हाट्सएप पे फोटो भेजता हूँ मेरे अप्रोच का. ठीक है, भेजना, बट क्लास के बाद अभी नहीं, है ना. हाँ साहब भी थोड़ी भेज. ठीक है, चल अभी शैल रब दिस नाउ. से यस.
यस सर। यस सर। श्योर सर। एक क्वेश्चन और लिखो। Should I dictate the question or you will? I should write it. सर I डिक्टेट कर दो। सर लिख दो सर। Okay. लिखते लिखते डिक्टेट करो सर। रहने दे लिख देते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। Through the two ends of a glass tube which is 200 centimeter long, hydrogen chloride gas and ammonia gas hydrogen chloride gas and ammonia gas are allowed to enter. Right? At what distance? At what distance from hydrogen chloride gas side ammonium chloride vapors, ammonium chloride white vapors or white fumes will form? First, क्वेश्चन समझे क्या कह दोबारा बोल रहा हूँ आर्यन। सर वॉइस क्रैक हो रही है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अभी आ रही है? हाँ सर अभी आ रही है। ठीक है। कह रहा है ये ग्लास ट्यूब है, डिस्टेंस ग्लास ट्यूब का 200 सेंटीमीटर है। यहाँ पे एक ऑरिफिस है, यहाँ पे एक ऑरिफिस है, यहाँ से HCl गैस आना शुरू हुई और यहाँ से अमोनिया गैस। वो पूछ रहा है कितने डिस्टेंस के बाद HCl और अमोनिया गैस आपस में मिलेंगे ताकि NH4Cl के वाइट फ्यूम्स मिले। तो वो डिस्टेंस निकालना, मतलब जब दोनों आपस में मिलेंगे ना, वो वाला डिस्टेंस निकालना। फिर अमोनिया गैस का फॉर्मूला NH3 होता है ना? हाँ, अमोनिया इज NH3 एंड HCl तो HCl ही है। तो मैं सॉल्व करूंगी, तुम करोगे? पहले हम सर करेंगे। ये लास्ट वर्ड क्या है? लास्ट वर्ड क्या है? ये नहीं, ये वे फर्स्ट अच्छा फर्स्ट। वाइट फ्यूम्स विल फॉर्म फर्स्ट, मतलब पहले कहाँ पे मिलेगी? सर रुको ट्राई कर रहे हैं। हाँ करो करो, कोई दिक्कत नहीं।
सर दोनों के नंबर ऑफ मोल्स सेम है ना? मतलब जब कुछ नहीं दे रखा है तो दोनों का एरिया और पार्शियल प्रेशर सेम है। ये प्रेशर और ये वाला प्रेशर सेम है, ये एरिया और ये एरिया सेम है, ठीक है। तुमको ये निकालना है, ये क्या सीन है, कैसे रहेगा, कैसे। यार मैं एक चीज बोलूं, चल पहले करो उसके बाद बात करते हैं, है ना। सर हाँ इसका आंसर कुछ ज्यादा ही जल्दी मिल गया। कितना आंसर आया? सर मुझे 81.1 आ रहा है। 81.1 सही है, मुझे भी 81 आ रहा है, सही है, एग्जैक्ट 81 आ रहा है मतलब। सही है। हाँ guys, shall we solve it now? Yes sir. Sir, wait. Okay, waiting. Oh, 2 more minutes will take, and one more question I'll give after that. Okay, don't worry. Okay, shall we solve now? Sir. Yes sir. चलो मेरी बात सुनो। अच्छा एक बात बताओ, एरिया जो है ट्यूब का वो दोनों जगह सेम है, है कि नहीं? Yes sir. तो मतलब वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इनटू डिस्टेंस, राइट? Yeah. है कि नहीं? हाँ Yes sir. और एक बात बताओ, मैं मान लेता हूं कि आफ्टर टाइम टी एक पर्टिकुलर टाइम पे दोनों आपस में मिल रहे हैं, तो लेट्स से जब इसने x डिस्टेंस कवर किया तो ये डिस्टेंस कितना होगा? 200 minus x 200 माइनस x ना, कितना होगा? 200 minus. तो शैल आई से दैट रेट ऑफ एस्केप जो था और रेट ऑफ डिफ्यूजन तो था,
that was proportional to dv by dt, right? Yes, sir. तो उसको मैं proportional to x by t लिख सकता हूँ, डिस्टेंस जितना भी ट्रैवल किया, बिकॉज एरिया सेम है. Yes, sir. तो एरिया इंटू डिस्टेंस बाय टी कर सकते हैं, करेक्ट? हाँ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, सब कुछ सेम है, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ. बात ठीक है? हाँ. चलो अब HCl के केस के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? सर एक बार वापस समझाओ ना. मैंने बोला कि रेट ऑफ एस्केप क्या होता है? रेट इन चेंज इन वॉल्यूम बाय टी. वॉल्यूम कितना चेंज हुआ? अरे गाइस यू आर इन टॉकिंग मोड हियर, म्यूट ऑल. ओके, रेट क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीवी बाय डीटी. तो वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इनटू लेंथ. ठीक है, तो सपोज एरिया तो दोनों के लिए कॉमन है, इसने लेंथ x कवर करी, इसने लेंथ 200 माइनस x कवर करी, तो जो वॉल्यूम होगा वो x इंटू ए होगा और 200 माइनस x इंटू ए होगा. एग्रीड और नॉट? Yes, sir. और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास होगा. तो एक काम करते हैं, रेट ऑफ HCl बाय रेट ऑफ किसका? अमोनिया निकाल लेते हैं. इट इज इक्वल टू, डिवाइड करोगे तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हट जाएगा, तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl. कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? No, sir. एक बार बताओ, एरिया रेट ऑफ HCl क्या हो जाएगा? एरिया इंटू एक्स डिवाइड बाई टी. और रेट ऑफ अमोनिया क्या हो जाएगा? एरिया इंटू 200 माइनस एक्स विद द सेम टाइम टी, बिकॉज सेम टाइम पे दोनों मिल रहे हैं. तो 80 से 80 गया, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास. आया कि नहीं आया? आया. Yes, sir. आया ना. तो x बाय 200 माइनस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 17 बाय 36.5. अंडरस्टूड? Yes. इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी 81.6 सेंटीमीटर. गेटिंग इट? Yes. अरे मेरे लाल पीलो हरे नीलो समझ में आया? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. हटाऊं इसको? Done, sir. सर एक डाउट है. हाँ पूछ बेटा. सर R is directly proportional to dV by dt कैसे हुआ? वॉल्यूम तो कंटेनर का वॉल्यूम हो एक बार जाएगा ना. बता, जितने नंबर ऑफ मोल्स आएंगे उतना ही वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सर तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम हुआ. हाँ, तो गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा है ना धीरे धीरे. यस सर. हाँ, तो जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उतना ही उसका रेट ऑफ इफ्यूजन डिफ्यूजन होगा, राइट? तभी तो dN by dt को Yes. प्रोपोर्शनल लिखा था dV by dt. dV by dt को dP by dt प्रोपोर्शनल लिखा था, भूल गए क्या? इसके अंदर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो रेट क्या लूंगा? चेंज इन वॉल्यूम बाय टी ना. जहाँ प्रेशर चेंज होगा वहाँ पे dP by dt लूंगा, और जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स तो हर जगह ही चेंज होंगे. गेटिंग इट? ओके, सर प्रेशर सेम हुआ तो दोनों साइड प्रेशर सेम है, तभी तो वॉल्यूम को नंबर ऑफ मोल्स के प्रोपोर्शनल लिखा है. सब कुछ सेम है, सिर्फ किसके? नो सर प्रेशर सर ऑरिफिस के बाहर और वो कंटेनर के अंदर सेम देखो, रहा तो. कंटेनर के अंदर तो कुछ नहीं था, ऑरिफिस के बाहर ही था प्रेशर. तो प्रेशर ऑरिफिस के बाहर था, तभी तो हमने काउंट किया कि दोनों का प्रेशर सेम है. अदरवाइज पार्शियल प्रेशर लेता कि नहीं लेता मैं? यस. हाँ, चलो आगे चले. हाँ सर. नाउ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करते हैं सेम टाइप का. थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, तुमसे हो जाएगा. आई हैव अ फर्म फेथ कि तुम सबसे हो जाएगा. ठीक है? हाँ. फॉर 10 minutes each,
at 27 degrees Celsius from two identical holes, nitrogen and an unknown gas are leaked into a container of volume 3 liters. The resulting pressure is 4.18 bar and the mixture contains and the mixture contain 0.4 moles of nitrogen gas. What is the molar mass of unknown gas? चलो शुरू हो जाओ. क्वेश्चन इंग्लिश के अंदर है, किसी को दिक्कत समझने में बता दो मेरे को. सबसे पहले क्वेश्चन को एनालाइज करना कि पूछ क्या रहा है, क्या चाहता है और क्या हो रहा है. पहले देखो क्या हो रहा है और उसको बना लो डायग्राम की टर्म्स में. कैलकुलेट करो जल्दी. सर रिजल्टिंग प्रेशर कंटेनर का ऑब्वियसली कंटेनर के अंदर का ही प्रेशर होगा ना बेटा. सॉल्व करो इसको. नाइट्रोजन और अननोन गैस की वजह से तो प्रेशर आया वो. और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैच करना मेन पॉइंट को. ठीक है. सॉल्व करें गाइस. सर 448 कितना? 448
448 आ रहा है। 448 आ रहा तुम लोगों का? हाँ सर। हाँ सर, शायद। सही आ रहा है। सर बराबर है। बरोबर है, बरोबर है। ओके, सॉल्व करें गाइस। Yes, अच्छा, sir. जिसका आंसर है नूतन, डायग्राम बनाया था? हाँ सर। हाँ सर, बनाया। ओके ओके, क्योंकि बिना सर डायग्राम के तो नहीं होगा वो। सर टाइम इसलिए लग गया क्योंकि पहले उल्टा डायग्राम बना लिया था। अच्छा, सुनो, डायग्राम बनाया, हाँ उसमें सर। क्या किया हम लोगों ने? पहले दो आइडेंटिकल ऑरिफिस हैं, मतलब इसका एरिया और दूसरे का एरिया क्या है? सेम है, Constant. सेम है, सेम है। Same है सर। यहाँ से एक गैस जा रही है और यहाँ से दूसरी गैस जा रही है। दैट इज, यहाँ से अननोन गैस ले लो, एक्स ले लो, और यहाँ से ले लो नाइट्रोजन गैस, राइट? टेम्परेचर T ले लो। T कितना दे रखा? टेम्परेचर 27, मतलब 300 केल्विन। एग्रीड? यस सर। वेरी गुड। अब एक बात बताओ, वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर कांस्टेंट है कंटेनर का, तो नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ना? यस सर। तो मैं लिख सकता हूँ रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dN by dt, which is also directly proportional to dP by dt, right? यस सर। Very good. So dP by dt is inversely proportional to molecular mass of gas. ये लिखोगे कि नहीं लिखोगे? लिखेंगे। वेरी गुड। और चक्कर क्या है, तुमको टोटल प्रेशर पता है क्या? कौन सा प्रेशर पता है तुम्हारे को? 4.18 बार, करेक्ट? तुमको Yes, sir. वॉल्यूम ऑफ कंटेनर पता है 3 लीटर, तुमको टेम्परेचर पता है, तुमको नंबर ऑफ मोल्स भी पता है नाइट्रोजन के, करेक्ट? तो क्या तुम प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन निकाल सकते हो क्या? प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैस कांस्टेंट इनटू T डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इन लीटर्स, करेक्ट? Yes. तो नंबर ऑफ मोल्स कितना दे रखा है? 0.4, करेक्ट? Yes, जब sir. प्रेशर बार में लोगे तो आई विल गेट 0.083, करेक्ट? Yes, sir. टेम्परेचर कितना हो जाएगा तुम्हारा? 300 300 केल्विन Kelvin. डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 3 लीटर, करेक्ट? Liter. तो तुम्हारे पास जो प्रेशर आया, दैट 3 से ये 3 गया तो आया कितना? 100। तो आ जाएगा 8.3 इंटू 0.4, तो कितना आया ये? 12, 32, 3.32, करेक्ट? Yes. वेरी गुड। अगर 3.32 बार आया तो मेरे को प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन मिल गया। टोटल प्रेशर कितना है? 4.18. तो मैं कह सकता हूँ प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इसके अंदर 3.32 है। तो प्रेशर ऑफ अननोन गैस कितना आया? 4.18 माइनस 3.32 कितना आया? 8.6 0.86 ना? 0.86. अब एक बात बताओ, जितना प्रेशर आया वो उसका डिफ्यूजन की वजह से आया ना, राइट? Yes, sir. तो मैं लिख सकता Yes, हूँ sir. dP by dt। नाइट्रोजन के केस के अंदर क्या हो जाएगा? dP by dt नाइट्रोजन के केस में क्या हो जाएगा? On space here. Hey, you have copied the question, right? Yes, sir. Okay. Yes, Now sir. listen. So I can simply write down like this कि अगर dP by dt is inversely proportional to molecular mass है, अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास है, तो प्रेशर कितना है अमोनिया का? 3.32
कितने टाइम में? 10 मिनट में। एग्रीड? हाँ इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ 17। ये आ गया पहला स्टेटमेंट। अननोन गैस का सर क्या हो जाएगा? 34 ना 0.86 10 सर मिनट्स के 34 ना अंदर। क्या हो बेटा? 34 ना मॉलिक्यूलर मास हाँ N2 है सर N2 है। N2 है। ओके हाँ सर N2 है। 1 सेकेंड 28 होगा। 1 सेकेंड। 28 अरे हाँ 28 ओके 28 होगा करेक्ट। तो अब एक काम करो, दोनों को डिवाइड कर लो। तो वो क्या आया? 3.32 डिवाइड बाय 0.86 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 28 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ x। करेक्ट? तो x का जो मास आएगा दैट इज 28 इंटू 332 इंटू 332 डिवाइड बाय 86 एंड 86। इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा क्या आएगा? 448। 48। अंडरस्टूड? यस सर। ग्रेट। सर वापस बताओ ना, कौन सा पार्ट बताऊं बेटा वापस? स्टार्टिंग से देखो, अप्रोच कैसे करते हैं, मतलब नहीं समझा। अच्छा एक बात बता, वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो जो प्रेशर चेंज आएगा वो रेट ऑफ डिफ्यूजन की वजह से आएगा। हाँ सर। तो इस बार dp बाई dt को मैं रेट ऑफ डिफ्यूजन ले लूं। हाँ तो अगर dp बाई dt को रेट ऑफ डिफ्यूजन लिया दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। यस। अब मैंने PV इक्वल टू nRT से ना नंबर ऑफ प्रेशर निकाल लिया नाइट्रोजन का। टोटल प्रेशर दे रखा था 4 पॉइंट कितना? हाँ सर कुछ तो समझा। अरे कुछ नहीं, 180 4.18 लिखा था। ठीक है, तो अगर 4.18 टोटल प्रेशर था और ये प्रेशर तुम्हारा किसका आया? नाइट्रोजन का, तो अननोन गैस का प्रेशर कितना आएगा? तो मेरे पास प्रेशर आ गया अननोन गैस का और नाइट्रोजन का। तो मुझे पता है ये प्रेशर किसकी वजह से है? डिफ्यूजन की वजह से है। करेक्ट? हाँ तो 3.32 dp बाई dt मतलब 10 मिनट, 0.86 बाय 10 मिनट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। दोनों को डिवाइड किया, ये आ गया। गेटिंग इट? अरे समझ में आया? क्या Yes, sir. कैसे? सर वो आपने प्रेशर ऑफ N2 कैसे किया सर? क्या इस बात से प्रेशर? समझ में नहीं आया। प्रेशर प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन के बाद से समझ में नहीं आया थोड़ा। देखो, अगर प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन 3.32 आया तो टोटल प्रेशर 4.18 था। तो प्रेशर ऑफ अननोन गैस कितना आएगा? 0.86 आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। ठीक अच्छा है। पार्शियल प्रेशर निकालना। हाँ बेटा, पार्शियल प्रेशर निकाल लिया। ठीक है, ये नाइट्रोजन का प्रेशर हो गया और ये अननोन गैस का हो गया। तो ये प्रेशर 10 मिनट में आया, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा? 3.32 बाई 10। यस सर। वेरी गुड। और रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अननोन गैस क्या हो गया? 0.86 बाई 10। राइट? यस सर। Very good. Is inversely proportional under root of molecular mass. Is inversely proportional under root of molecular mass, where x is molecular mass. तो निकाल लिया इसको डिवाइड करके, 10 कट गया, ये आ गया अंडर रूट, ये आ गया, दोनों को स्क्वायर कर दिया, इसको इधर लेके गए, खत्म। अरे सर समझ में मतलब आया? डिवाइड करने वाले होंगे ना मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, हाँ तो ये कांस्टेंट कट जाएगा। हाँ, एक्चुअली ग्राम्स लॉ में सब डिवाइड करने वाले होते हैं, हाँ तभी सर, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कट जाता है दो गैस से होंगे ऐसा कुछ तो। ना। हाँ वही होगा। अब एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, ठीक है? सर एक डाउट है। हाँ बेटा बोलो। सर आपने 3.32 by 10 is directly proportional to 1 by root 28 लिया। हाँ और उसके बाद वो दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया अननोन गैस वाले। करेक्ट सर तो फिर कांस्टेंट कैसे कट गया? बेटा, बिकॉज जो भी चीज है वहाँ। सर लेकिन दोनों के लिए कांस्टेंट अलग होगा ना? क्यों अलग दोनों होगा? मुझे equation एक के बात लिए। बताओ, एक बात बताओ, जब हमने किया P इंटू ए डिवाइड बाई 2 पाई आर टी एम नॉट, राइट? यस सर। तो जो भी वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सेम है, सब सेम है,
ठीक है, प्रेशर जो चेंज था वो मैंने यहाँ पे ले लिया, तो ऑब्वियसली यही रहेगा ना, हाँ है कि नहीं? यस सर डन। यस सर। या तो नंबर ऑफ मोल्स लेके भी कर सकते थे इसको। हाँ कर सकते थे, जो प्रेशर का रिलेशन था वही नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशन आता ना, यस करेक्ट। हाँ, और चक्कर क्या है, एक और चीज सुन लो यहाँ पे, ये जो प्रेशर है यहाँ पे किसका, नाइट्रोजन का, और यहाँ पे जो प्रेशर है किसका, जिस प्रेशर से अंदर घुस रहा है वो सेम है। गेटिंग अ पॉइंट? अरे तभी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन मेजर करोगे ना, कंपेयर करोगे। जिस प्रेशर से बाहर से अंदर घुस रहा है वो अगर सेम होगा तभी तो सिर्फ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास आएगा, हाँ या ना? यस सर। एनालाइज करो ना कि गैस अंदर घुस रही है, अंदर जाने के बाद प्रेशर चेंज हो रहा है क्योंकि अलग अलग रेट से घुस रही है, और वो अलग रेट किसकी वजह से आया, मॉलिक्यूलर मास की वजह से, राइट? यस सर। या अभी शैल आई रब दिस नाउ? सबने लिख लिया? यस सर। हाँ लिख लिया गाइस? यस सर। अच्छा एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है, सिर्फ मैथमेटिकली सॉल्व नहीं करना है, दिमाग से सॉल्व करना है ना, पेन पेपर यूज मत करना। ये एक बलून है, ठीक है, ये बलून दूसरे बड़े बलून के अंदर है। सिर्फ क्या बोले, स्टार्टिंग से बोलोगे? अरे दोनों बलून है, एक के अंदर एक बलून, पता है बलून? बलून पता है बलून? हाँ सर पता है। हाँ तो ये दोनों बलून्स हैं। इस बलून के अंदर ना ड्यूटेरियम गैस है D2, और इसके अंदर हाइड्रोजन गैस है H2। इसका प्रेशर भी 1 atm है, इसका प्रेशर भी 1 atm है, कोई दिक्कत? नहीं सर। वेरी गुड। अब एक काम किया मैंने, गलती से ना ये वाले अंदर वाले बलून के अंदर ना एक छोटा सा छेद हो गया, तो मुझे ये पता करना है कि ये जो अंदर वाला बलून है इसका वॉल्यूम कम होगा, मतलब ये अपना वॉल्यूम कम रहेगा या वॉल्यूम बढ़ेगा अंदर वाले गैस, अंदर वाले बलून का? सेम रहेगा सर अंदर वाला बलून ही रहेगा, वो ब्लास्ट हो जाएगा ना। अरे नहीं रे, इतना आसान होता तो क्या बात थी। What will happen to inner balloon? वॉल्यूम डिक्रीज होगा सर। हाँ हाँ सर वॉल्यूम डिक्रीज होगा। वॉल्यूम डिक्रीज होगा सर। वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ऐसा क्यों? सर सर D2 गैस H2 बिगर बलून के पास आएगा ना। अच्छा यहाँ पे प्रेशर कितना हाइड्रोजन का? 180। 1 atm। यहाँ पे प्रेशर क्या ड्यूटेरियम का? 1 atm। अच्छा इस छेद के थ्रू क्या होगा? एफ्यूजन होगा। ये ड्यूटेरियम जाएगा कि बाहर जाए, करेक्ट? डिफ्यूजन होगा। शट अप एंड लिसन। और ये हाइड्रोजन जाएगा कि अंदर आए? सुन लो, थर्मो इक्विलिब्रियम होगा ना। अरे यार इक्विलिब्रियम का सर नाम क्यों ले लो, जब प्रेशर इक्वल पता है ही ना। नहीं। सुनो ना, बाहर आएगा ड्यूटेरियम, अंदर जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन और रिफ्यूजन किसके प्रोपोर्शनल होता है? प्रेशर इनटू एरिया डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। क्या दोनों का प्रेशर अलग अलग है क्या? नहीं सेम है। क्या एरिया ऑफ ऑरिफिस अलग अलग है क्या? सेम है। तो रेट किसके प्रोपोर्शनल हुआ? 1 by molecular weight। मॉलिक्यूलर मास। वेरी गुड। एक बात बताओ, किसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा किसका कम? ड्यूटेरियम का ज्यादा है। ड्यूटेरियम का ड्यूटेरियम का वो ज्यादा हेवियर 4 है। है, हाइड्रोजन का 2 है, तो ड्यूटेरियम ज्यादा निकलेगा कि हाइड्रोजन ज्यादा अंदर जाएगा? हाइड्रोजन ज्यादा अंदर जाएगा। अगर हाइड्रोजन अंदर ज्यादा जा रहा है तो इसके वॉल्यूम को क्या होगा? इंक्रीज। बढ़ जाएगा। बस 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 बस, वॉल्यूम विल इंक्रीज। सर अभी बाहर के मतलब एटमॉस्फेयर प्रेशर डालेगा उसका कुछ नहीं है।
अरे यार वो तो बाहर ही है ना, अंदर वाले सिस्टम में काहे का एटमॉस्फेयर, अंदर तो मैंने सिर्फ हाइड्रोजन उठाया ना, वो सेम एटीएम तो दोनों जगह लग रहा होगा ना। समझ में आया तुमको क्वेश्चन? यस सर। हाँ, यस सर। गेटिंग इट? यस चलो सर। एक क्वेश्चन और सुनो सर। अब दिस यस सर। सर पर एक पॉइंट के बाद वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। एक पॉइंट के बाद वॉल्यूम हाँ कांस्टेंट हो जाएगा जब प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। सर तो वॉल्यूम रिड्यूस होगा फिर। अरे वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा मतलब रुक जाएगा, राइट। अब रिड्यूस को करवा रहे हो वॉल्यूम को, जब बढ़ा के कांस्टेंट करवा दिया तो रिड्यूस को होगा फिर मतलब मजाक चल रहे थे। गेटिंग अ पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। पहले तुम कह रहे हो कि चलो बढ़ेगा, मैंने कहा चलो बढ़ेगा, फिर कहते हो फिर तो कांस्टेंट हो जाएगा एक पॉइंट, मैंने कहा हाँ चलो कांस्टेंट हो जाएगा, फिर बोल रहे हो नहीं फिर तो घटेगा। अरे घटेगा कि जब कांस्टेंट हो गया तो। सर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर बढ़ना चाहिए। हाँ तो उसी की वजह से तो रेट ऑफ डिफ्यूजन एक दूसरे को और डिफ्यूजन एक दूसरे को बैलेंस करेगा। जब बैलेंस कर गया तो कोई चेंज आएगा क्या उसके बाद? नो सर। हाँ तो बस कांस्टेंट हो जाएगा, फिर वॉल्यूम घटेगा क्यों? नाउ लिसन एवरीवन। सर हाँ बेटा बोलो। सर अगर बाहर ड्यूटेरियम रहता और अंदर हाइड्रोजन रहता तो क्या उल्टा होता? हाँ ऑब्वियसली बेटा, ऑब्वियसली उल्टा ही होता ना फिर तो। ये एक ऑरिफिस है, ओके ये एक सर क्वेश्चन है नेक्स्ट। हाँ ये दो ऑरिफिस है। इस ऑरिफिस का जो एरिया है वो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस ऑरिफिस का जो एरिया ये होगा, बिना पेन पेपर का कि पेन पेपर यूज है? अरे पेपर करोगे ना तो ये दे रहा हूँ ना, कुछ सारी चीजें दे रहा हूँ। पेपर पेन पेपर लोगे अभी, ठीक है। बता दो करना क्या क्वेश्चन, क्या मैं पूछ रहा हूँ बस एक मिनट। इसके अंदर ना मेरे पास हीलियम गैस है और मीथेन गैस है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम जो दे रखा है वो दे रखा है 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन जो दे रखा है वो दे रखा है 4, टेम्परेचर टी रहेगा, ठीक है। मुझसे ये पूछा गया इस ऑरिफिस का नाम लिख लो 1, इस ऑरिफिस का नाम दे दो 2, ठीक है। मुझसे ये पूछा गया रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम फ्रॉम ऑरिफिस 2 to the rate of diffusion of methane from orifice 1 क्या होगा? उनके बीच का रेशियो पूछ रहे सर। हाँ अरे रेट का रेशियो पूछ रहा है ना, रेट ऑफ डिफ्यूजन का रेशियो पूछ रहा है क्या होगा। वो सर बोल रहा है कि हीलियम दोनों साइड से बाहर जा रहा है कि सिर्फ एक साइड से जा रहा है? बेटा दोनों साइड से जा रहा है, बट मेरे को दूसरे वाले ऑरिफिस का रेट पहले वाले ऑरिफिस के रेट के साथ कंपेयर करना है। यहाँ से दोनों चीजें बाहर निकली, यहाँ से भी दोनों चीजें बाहर निकलेंगी, बट जो जिस तरीके से हीलियम गैस बाहर निकल रहा है और जिस तरीके से मीथेन गैस यहाँ से निकल रहा है ऑरिफिस 1 से, दोनों का रेशियो चाहिए, ठीक है। सॉल्व करो उसको।
बता जरा कितना है। अच्छा एक बात बताओ, वॉल्यूम और टेम्परेचर कंटेनर का सेम है कि अलग अलग है? सेम सेम है। तो सर मुझे नंबर ऑफ 1 आ मोल्स रहा है। क्या 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 क्या? मुझे 1 आ रहा है। चलो बढ़िया है, अच्छा किया। नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो क्या है? 1:4। वेरी 1:4। गुड। इसका जो पार्शियल प्रेशर का रेशियो होगा वो भी 1:4 की रेशियो में रहेगा, राइट? जो हीलियम मीथेन का प्रेशर है वो 4 गुना ज्यादा रहेगा हीलियम के प्रेशर से। यस सर। मान रहे हो? हाँ सर। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स का जो रेशियो रहता है वही प्रेशर का रेशियो रहेगा, तो प्रेशर की वजह से भी रेट ऑफ डिफ्यूजन में फर्क पड़ता है, करेक्ट? ग्राहम अंकल ने क्या कहा था? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस इनटू एरिया ऑफ ऑरिफिस डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। इसमें क्या प्रेशर सेम है क्या दोनों गैसेस का? नो सर। क्या No. एरिया सेम है क्या दोनों गैसेस का? नो सर। वेरी गुड। क्या मॉलिक्यूलर मास सेम है क्या दोनों गैसेस का? No. वेरी गुड। अब एक बात बताओ, रेट ऑफ एस्केप ऑफ हीलियम टू द रेट ऑफ एस्केप ऑफ मीथेन from second container, from second orifice, from the first orifice, what is the partial pressure of helium? Shall I write down PHE? है कि नहीं? हाँ। डिवाइड बाय इनटू एरिया। एरिया कितना है इसका जहां से हीलियम निकाल रहे हो? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट? नहीं, हाँ हाँ 2 हाँ सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। अंडर सही रूट ऑफ दिया हुआ है। मॉलिक्यूलर मास कितना हीलियम का? +2 4 4 है। 4 चार। 4 हाँ रुक 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 रुक, तो ये हाँ, 4 बढ़िया बढ़िया, करेक्ट। यहाँ पे कितना है प्रेशर मीथेन का? P of CH4 लिख दे। 1:2 आएगा। एरिया कितना है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ हाँ तो इधर 1 सेंटीमीटर लिखो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊपर क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास, तो अंडर रूट ऑफ कितना? 16। 4 प्रेशर का रेशियो कितना है? जो नंबर ऑफ मोल्स का 1:4 रेशियो होगा 1/4। 1 से सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर गया तो 2 बचा। अंडर रूट ऑफ 4 2 आता है, अंडर रूट ऑफ 16 4 आता है, करेक्ट? या यस सर। टोटल कितना है? 1 गेटिंग इट? अंडरस्टूड? यस सर। चलो ग्रेट। लेकिन सर मैंने अलग तरीके से किया था। सर हमने प्रेशर में कन्वर्ट क्यों किया? सर मैंने भी अलग तरीके से किया था। प्रेशर में कन्वर्ट क्यों किया नहीं मतलब? मतलब प्रेशर का 1:4 क्यों किया हमने? बिकॉज उन दोनों का प्रेशर सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग। हाँ तो वो प्रेशर डिसाइड करता है ना कि कितनी रेट से वो निकलेगा बाहर। गेटिंग अ पॉइंट गाइस? अंडरस्टूड और नॉट? अंडरस्टूड। यस सर अंडरस्टूड। अंडरस्टूड राइट, ठीक है। सॉल्व करो इसको। सर मैंने dV/dt इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√ऑफ वो मॉलिक्यूलर वेट यूज किया था, उससे आया था मुझे 1। कैसे आएगा उससे? अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास करोगे तो 1 कैसे आएगा मुझे बताओ। सर मैंने सबसे पहले dV को मैंने A/L लिया सर। L और T दोनों वन सेकेंड। क्या A/L dV/dt में लेना है क्या हाँ इनका? सर। वॉल्यूम इज इक्वल। L क्यों लिया? लेंथ कहाँ से लेके आए? कौन सी लेंथ है ये? अच्छा शायद तुक्के से आ गया होगा सर। ऑब्वियसली लेंथ कौन सी है मतलब क्या है ये? वाह। गेटिंग अ पॉइंट? समझो मेरी बात को। चलो डन। यस सर। Shall we Yes, wind sir. up now? Okay sir, bye sir. Okay, bye. Take care. Thank you sir. Yeah. Thank you, Bye, sir. sir. Thank you, sir. Bye. Bye, God. sir. Acha, tomorrow I'll send Bye you. sir. I'll send Sir, you some what? questions on Graham's law, right? Okay sir.
Sure, and solve it properly. और जो आपने असाइनमेंट्स भेजे उनके सॉल्यूशंस भी आप होंगे। अभी मंगवा देता हूँ, करवा देता हूँ, ठीक है? हाँ। ओके, चलो टेक केयर बेटा। Thank you, Bye, sir. God bless you. Bye, sir. Bye. 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 Yeah. Bye. 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 Take care.